Hi students. So till now we have already started the chapter that is reproduction in human, and there we have started and we have discussed about the basic. I have given the introduction about the chapter. Then we have started with the male reproductive system, and we have studied about the male reproductive system a bit. तो आज हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? हमने पढ़ा था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो आपका टेस्टिस है या टेस्टिकल्स है उसका स्ट्रक्चर क्या है, पोजीशन क्या है, फंक्शन क्या है, उसके जो डिफरेंट डिफरेंट आपके पार्ट्स है वो क्या क्या होते हैं. सो ऑल दैट वी हैव स्टडी. नाउ टुडे ऑनवर्ड्स एंड टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस. इफ एक्चुअली आज हम क्या पढ़ेंगे कि अगर हम एक सेक्शन लेते हैं टेस्टिस का तो हमें क्या क्या मिलेगा और वो जो डिफरेंट पार्ट्स हमें मिलेंगे उसका क्या फंक्शन है वो हम पढ़ेंगे डिटेल में. उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है. सो whenever we actually see the section of the testis, then what are the things we can see? So there are many seminiferous tubules, that is a maximum, that is because in the compartments we have seen the seminiferous tubules are there. So we can see the seminiferous tubules which are scattered in the connective tissue. कहाँ पे रहते हैं वो? These are scattered in the connective tissue known as interstitial tissue. So let us see a diagram so it will be more clear to you. So this is a TS section. If we take a TS section, then it will be like this. If we take a TS section, then of testis, so these are the different parts and it will look like this. ऐसा दिखेगा हमें. ठीक है ना. तो पहला है जो आप देखोगे, all these are seminiferous tubules. These are all seminiferous tubules. What you can see. These are all seminiferous tubules. I have marked here with arrows. So these are all seminiferous tubules. Okay. Now the seminiferous tubules, because you have taken the section, so it is completely visual. It is visible that the seminiferous tubules are present in the interstitial connective tissue. तो अगर हम देखेंगे तो ये चारों तरफ बाकी क्या है seminiferous tubules के चारों तरफ? It is present, or it is all the other surrounding area or the region is or the part is covered with, or it is what is present there? It is present your interstitial connective tissue is present. ठीक है. तो अगर हम सेक्शन लेंगे अब टेस्टिकल्स का तो हमें जो टेस्टिकल्स आपको सबसे पहले हमें क्या लिखेंगे? मैक्सिमम थिंग व्हाट वी कैन सी दैट इज योर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड इट इज प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. अगर हम एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा? इट इज हैविंग अ लेयर, द फर्स्ट लेयर व्हिच आर बेसिकली मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स. ठीक है. क्या बनते हैं, किससे बनता है? क्यूबॉइडल सेल्स. उसे बोलते हैं हम जर्म लेयर. ठीक है. या फिर हम जो सेल्स उसको बोलते हैं जर्म सेल. ठीक है. सो द अगर हम देखेंगे तो जो उसका एपिथेलियम रहेगा, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक्चुअली बेसिकली लाइंड विद अ जर्मिनल एपिथेलियम. तो आपको ये जो लेयर दिख रहा है, ओके, clearly, so you can see that all the cells are almost cube in shape, so they are cuboidal in shape. So the layer of the epithelium which is there or which is lining the seminiferous tubule, that is known as germinal epithelium, and the germinal epithelium has two types of cell. अब जो लाइन कर रहा है आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को, वो किससे बना है? जर्मिनल एपिथेलियम से. और वो उसमें हमें क्या क्या मिल रहा है? हमें दो तरह के सेल मिलेंगे. एक तो है जर्म सेल जो हमें दिख रहे हैं, जो क्यूबॉइडल शेप के, मैंने पहले बताया, वो उसको बोलते हैं जर्म सेल. दूसरा आपको पिरामिडल ट्रायंगुलर टाइप शेप का सेल दिख रहा होगा, उसे हम कहते हैं सर्टोली सेल्स. क्या कहते हैं उसे? सर्टोली सेल्स. Right. So the germinal epithelium has two types of cell. Most of the cells are cuboidal, right? But there are some cells which are long and pyramidal in shape. There are some cells which are long and pyramidal in shape, which provide nourishment. क्या काम है उसका? It is providing nourishment, right? So the main function of this pyramidal cell is to provide nourishment. So that's why they are also known as nurse cell, right? Because they provide nourishment to the seminiferous tubule, or the developing sperm. क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या बनता है, क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस होता है. तो स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए. तो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? ये आपके जितने भी जो पिरामिडल शेप के लॉन्ग सेल है वो प्रोवाइड करते हैं, जिनका नाम क्या है? सर्टोली सेल. इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? नर्स सेल भी कहते हैं. बिकॉज दे आर नर्सिंग और दे आर टेकिंग केयर और दे आर प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म.
during the time of spermatogenesis, right? Now the cuboidal cells are also known as germ cell, okay? And these are actually these cuboidal cells are the main cells actually which would produce the sperm. तो sperm कौन बनाता है? ये जो germ cell है, ये जो cuboidal cell है, यही sperm बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? By meiotic division. क्या करते हैं ये? Meiotic division करते हैं. Meiosis होता है, आपको पहले ही मैंने डिस्कशन हमने किया था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें आपको माइटोसिस दिखेगा, लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें मियोसिस और माइटोसिस दोनों ही दिखेगा. तो स्पर्म का जो फॉर्मेशन है, बिकॉज स्पर्म इज एक्चुअली द मेल गैमेट. स्पर्म क्या है? मेल गैमेट है. इसीलिए मेल गैमेट फॉर्मेशन के लिए क्या होता है? मियोसिस होता है. ठीक है, कौन करता है ये मियोसिस? जर्म सेल करते हैं. ठीक है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में रहते हैं. एंड देन दे आर फाइनली प्रोड्यूसिंग दिस स्पर्म. ठीक है, सो द ट्रायंगुलर सेल are known as Sertoli cells. ठीक है, and these Sertoli cells are also known as nurse cell. ठीक है, जस्ट मैंने बताया आपको क्या कहते हैं, उसे हम nurse cell भी कहते हैं, right? Those points are written here as well, so you can pause and you can write. So the seminiferous tubules lined with, or this is the first point, you can pause and write. Then the seminiferous tubules lined with the germinal epithelium. The germinal epithelium which has two types of cells. Just now I have discussed. One is your cuboidal, second one is your pyramidal. Right, cuboidal is called germinal cell, pyramidal is called Sertoli cell. Right. Now, these cells provide nourishment. Which cells? The pyramidal cells. Right. So this is also those same points what I have discussed. The cuboidal cells are known as the germ cells, and these are the one which undergo spermatogenesis. Just now I have discussed. और कैसे होता है spermatogenesis? बाय मियोटिक डिवीजन. मियोटिक डिवीजन होता है, मतलब क्या होता है? मियोसिस होता है. ठीक है, और जो आपके ट्रायंगुलर सेल्स है, दीज आर नोन एज सर्टोली सेल्स. ठीक है, उसका काम क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना. इसीलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया है? नर्स सेल. ठीक है, द मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड नरिशमेंट. ठीक है, किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है? टू द डेवलपिंग स्पर्म. राइट. अब इसके जो नंबर होते हैं आपके जो पिरामिडल सेल या जो सर्टोली सेल्स, इसके नंबर कंपैरेटिवली जर्मिनल सेल से कम होता है कंपैरेटिवली. ठीक है, द नंबर इज लेस. नाउ अब इसके आगे हमें देखना है. सो लेट अस गो बैक टू द डायग्राम. सो दिस इज द सेक्शन ऑफ द टेस्टिस. इफ यू सी, आई थिंक एवरीथिंग इज विजिबल क्लियरली. अब क्या है, हमें तो पता चल गया कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो ज्यादातर होते हैं, और उसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें जो the seminiferous tubule is aligned with the epithelium that is called germinal epithelium, जो कि germ cell से बनता है, जो कि cuboidal shape होता है. मेन काम होता है इसका spermatogenesis, मतलब sperm formation करना. और इसके अलावा हमारे उनके seminiferous tubule के अंदर और क्या होता है? ट्रायंगुलर और pyramidal shape के लॉन्ग सेल्स होते हैं, उसे कहते हैं सर्टोली सेल्स. और नर्व सेल्स का काम होता है to actually provide nourishment to the developing sperm, है ना. अब इसके अलावा जैसे हमने पहले देखा कि जो जितने भी सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो कहाँ प्रेजेंट है? चारों तरफ क्या है? इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू है. अब यहाँ पे इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू में हमें क्या मिलेगा? देयर आर सम scattered cluster of cells. You can you see that there are scattered cluster of cells. यहाँ वहाँ cluster of cells हमें दिखेंगे. वो क्या है? These cells are called Leydig cell. इसे हम क्या कहते हैं? See the interstitial connective tissue, there are cell masses. तो हमें इस cluster of cell या cell masses दिखेंगे which are scattered. ओके, और उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स भी कह सकते हैं इसे. दूसरा नाम क्या है? इंटरस्टिशियल सेल्स, या तो हम कह सकते हैं इसको लेडिक सेल. ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल भी कह सकते हैं या तो लेडिक सेल भी कह सकते हैं. ठीक है, सो लेडिक सेल का फंक्शन क्या है? इट सीक्रेट द मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन. काम क्या है इसका? टू सीक्रेट मेल सेक्स हार्मोन दैट इज योर टेस्टोस्टेरोन. So the interstitial connective tissue, there are cell masses are located, and these cells are scattered in the interstitial tissue, are known as interstitial cells or Leydig cell. Right? Right. और फंक्शन क्या है? To secrete the male sex hormone. क्या काम है इसका? To secrete male sex hormone. So Leydig cells का काम क्या है? Leydig cells secrete the male sex hormone that is your testosterone. Right? Clear? Now I will show you
one diagram of the testicles also. Yesterday, last class, what we have discussed. So you can see this is the better diagram or proper diagram of the testicles. If you see, we have already discussed the same things are mentioned here. We have discussed about those structure in this. I have used this diagram and made diagram. This one, the same thing is here. Now, the one more thing you need to see, that is the sperm. So this is the diagrammatic representation of the section. If you take the section of the not sperm, sorry, testis. If you take a section of the testis, then this is the diagrammatic representation. So you can see these are seminiferous tubule, and it is lined with the germinal epithelium. All the cells are cuboidal in shape. Can you see? And they are helping in the formation of sperm. और ये जो डायगोनल आपके पिरामिडल जो लॉन्ग सेल्स है इसको बोलते हैं आपके सर्टोरी सेल्स. ये नर्व सेल्स भी कहते हैं क्योंकि दे आर प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म. और यहाँ पे आपको देखो यहाँ हुआ मास ऑफ सेल्स स्कैटर्ड दिख रहे हैं जो कि आपके इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर हैं. इसे हम कहते हैं लेडी सेल और इंटरस्टिशियल सेल्स. काम क्या करता है ये? इसका मेन फंक्शन है आपका जो लेडी सेल का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसको बनाता है. ठीक है. Now I will show you a real image. This is the real image of the testis after we take a section. So ये असली photograph है. Means what we have seen under this photograph it has been taken under the microscope. So this is the real sperm. This is the real testis TS section. ठीक है. Now after that we need to talk about, अभी हम आगे बढ़ेंगे and we'll talk about some other topics which or other parts of the male reproductive system in detail. First of all, the sperm are getting conducted from the testis to the next structure by what? हमने पढ़ा था ना कि जो sperm बनता है वो तो seminiferous tubule में ठीक है, और जो seminiferous tubule से वो compartments में रहता है जो कि आपके testicular septum से बनता है. वो किससे बनता है? वो बनता है आपके फर्स्ट जो आपकी प्रोटेक्टिंग लेयर है टेस्टिस का, उसे हम कहते हैं क्या? ट्यूनिका वेजिनालिस. ठीक है, सॉरी ट्यूनिका एल्बिजिना. तो जो ट्यूनिका एल्बिजिना है, बिकॉज ऑफ द इनर फोल्डिंग्स मेड बाय द ट्यूनिका एल्बिजिना व्हिच इज फाइब्रस इन नेचर, देयर आर कंपार्टमेंट्स व्हिच आर फॉर्म इनसाइड द टेस्टिस. दोस आर टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स और बिकॉज ऑफ द टेस्टिकुलर सेप्टम्स. उसका नंबर कितना है हमने सब देखा था. अब हमें ये जानना है, हमने वहां पे ये भी देखा था कि जो सारे आपके कॉइल्ड जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, दिस आर कॉइल्ड स्ट्रक्चर, और वो एक नेटवर्क बनाते हैं सब जुड़ के एक साथ. व्हेन दे आर कमिंग आउट ऑफ द कंपार्टमेंट दे आर बिकमिंग स्ट्रेट इन and they are forming the structure of the network that is called retetestis, and then retetestis is going it is going and actually forming some smaller tube-like structures, and it is connected with the epididymis. तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि टेस्टिस के बिल्कुल पीछे या बिल्कुल नेक्स्ट क्या रहता है? एपिडिडाइमिस रहता है. ठीक है. सो स्पर्म बनता है किसमें? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, लेकिन वो कंडक्ट होता है. कंडक्ट का मतलब होता है ट्रांसफर कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है, कहां से होता है? तो वो रेटेटेस्टिस के द्वारा कहां जाता है? वासा फ्रेंशिया हमने पढ़ाया था लास्ट क्लास में. देन इट विल गो टू दी एपिडिडाइमिस, एंड उसके बाद वो कहां जाता है, क्या होता है, दैट आई विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल. So first of all, what is the first point we need to understand and write? See, the sperms are getting conducted from the testis to the next structure by vas efferentia. ठीक है, हमने कल डिस्कस किया था vas efferentia क्या है. Now the structure which is present next to the testis is known as epididymis. मैंने आपको कल बताया था, जो structure which is present just after the यहाँ पे आप देख सकते हो द स्ट्रक्चर व्हाट वी कैन सी जस्ट आफ्टर दी, यहाँ पे एपिडिडाइमिस होता है. तो हम आगे बढ़ेंगे आज. तो स्ट्रक्चर व्हिच इज जस्ट आफ्टर दी टेस्टिस इज एपिडिडाइमिस. सो यू कैन सी हियर. सो दिस इज द वास एफरेंशिया व्हिच इज कनेक्टिंग विद दिस कंपार्टमेंट्स. यहाँ पे होते हैं कंपार्टमेंट्स विद द हेल्प ऑफ रेटेटेस्टिस, and finally it is pouring all its secretion, all its production, that is a sperm. Actually sperms are getting transported through these fine tubes. Where they will go? They will actually transport it to epididymis first. Right, epididymis first. Okay, now what happens after the epididymis, after the sperm is coming or transported to the epididymis, then it is transported to the other parts. तो वो कैसे होता है वो हम देखेंगे आज. ठीक है. Now this epididymis is actually a coiled tube.
एपिडिडाइमिस क्या होता है? इट इज एक्चुअली ए हाईली कॉइल्ड ट्यूब, ठीक है। नाउ द एपिडिडाइमिस इज अ लॉन्ग ट्यूब अबाउट 6 मीटर। कितना मीटर होता है एपिडिडाइमिस? 6 मीटर का होता है, ठीक है। एंड इट इज हाईली कॉइल्ड, बहुत ही ज्यादा कॉइल्ड होता है। तो आप समझ सकते हो कि इसका डिस्टेंस, मतलब उसका जो लेंथ है, इससे आप पता कर सकते हो कि 6 मीटर है तो कितने ही छोटी जगह पे हमारे टेस्टिस के बिल्कुल पीछे वो एडजस्ट होता है। तो इससे आप ये पता कर सकते हो, समझ सकते हो कि ये कितना ज्यादा कॉइल्ड होगा। इट इज हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर एंड विच इज जस्ट प्रेजेंट नेक्स्ट टू द टेस्टिस, बिल्कुल टेस्टिस के बिल्कुल जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो, because it is 2D structure, so it little bit maybe little bit you have little bit confusion, but you please try to understand within 3D। तो ये बिल्कुल इसके पीछे होता है, ठीक है, नेक्स्ट होता है एपिडिडाइमिस। और ये क्या होता है? हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। लंबा कितना लॉन्ग होता है? 6 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। और इसमें कितने पार्ट होते हैं? बेसिकली वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। जो ऊपर वाला पार्ट आप देख सकते हो, उसका नाम क्या है? उसका हमने क्या किया? हेड कहा है, ठीक है। और क्या नाम है? कैपुट एपिडिडाइमिस भी कहते हैं। मिडिल वाले पार्ट को कहते हैं बॉडी और कॉर्पस एपिडिडाइमिस, और जो लास्ट वाला पार्ट है उसे कहते हैं टेल और कॉइडे एपिडिडाइमिस। अभी जो लास्ट वाला पार्ट है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पर्म जब बन जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, वो क्या करेगा? वास एफरेंशिया से यहाँ पे आ जाएगा आपके एपिडिडाइमिस के हेड पार्ट में, देन बॉडी पार्ट में, फाइनली कहाँ जाएगा? टेल पार्ट में। और ये जो टेल पार्ट है, यहाँ पे जो स्पर्म्स है ये यहाँ पे स्टोर्ड रहता है। कितने देर तक पता है आपको? 18 to 24 आवर, 18 से 24 घंटे तक जो स्पर्म है वो यही रहता है, ठीक है। और वो ऐसे नहीं रहता। ड्यूरिंग दिस पीरियड द स्पर्म एक्चुअली अटेन द फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, मतलब स्पर्म जो बनता है आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, और वो जब ट्रांसपोर्ट होकर एपिडिडाइमिस में आता है, तब भी वो फिजियोलॉजिकली कंप्लीटली मैच्योर नहीं होता है। तो कंप्लीट जो फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन है वो कहाँ पे अटेन करता है सारे स्पर्म? दैट दे अटेन इन द टेल पार्ट and the tail part of the epididymis। epididymis के जो tail part होता है वहां पे ये सबसे मतलब पूरा जो मैच्योरिटी है, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी को गेन करते हैं, राइट? फाइन। So you can have those points what I have just discussed here. You can see those points. So I'll discuss with you those same points. Yeah. So the epididymis is a coil structure. It's a highly coiled structure. Actually, we should say it's a highly coiled structure. And the epididymis is a long tube about 6 meter long. It is highly coiled, right? And it has 3 parts. I have already shown you the diagram. You have seen the diagram, right? And there are different parts. That is your head, body, and tail part, right? Then the middle part is known as body, and the head part is known as caput epididymis. Middle part is known as body or corpus epididymis, and the last part is called tail or quada epididymis. Now this part where the sperm is actually stored, यहाँ पे sperm stored होता है कितने घंटे तक बताया मैंने आपको? That is from 18 hours to 24 hours। और क्या करता है? During this period the sperm attain physiological maturity। sperm जो होते हैं फिजियोलॉजिकली मैच्योर होते हैं। कहाँ पे? एपिडिडाइमिस के टेल पार्ट में, ठीक है। Now then the epididymis is present, और यहाँ पे जो epididymis का लोकेशन है वो कहाँ पे है? मैंने पहले बताया आपको, it is present posterior side, it is in the posterior side of the testis, ठीक है। बिल्कुल टेस्टिस के नेक्स्ट, या हम बोल सकते हैं टेस्टिस से बिल्कुल पीछे रहता है आपका, और होता है epididymis, ठीक है। So this is the structure. You can please pause and you can take those points, and also you can draw the diagram. So next is, now in the next diagram we'll see the other different parts of the male reproductive organ, and maybe we are trying to study all the different organs all together, right? So first of all, सबसे पहले हमें ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपको समझना है। Then I will go to those pages where the points are written, so you can pause and you can write those points as well. But first of all, you need to understand what is the basic structures and what are the different function of each structure, how it is interconnected. Now these are testes, okay? So this is one, this is one. So these are the scrotal or scrotal structure or scrotum pouch-like structure. अब आपको ऐसा लगेगा सर ये तो स्कॉट्रम आपने यहाँ पे कंपार्टमेंट बनाया, यहाँ पे कंपार्टमेंट बनाया, तो ये तो एक साथ होते हैं, बीच में सेप्टम होता है, जैसे हमने कि पहले पढ़ा था पिछले क्लास में। सी दिस इज अ स्कीमेटिक डायग्राम। सबसे पहले तो आपको ये समझना है
कि सारे ऑर्गन्स को हम एक ही पिक्चर में पढ़ना चाहते हैं, इसीलिए हमने ये डायग्राम बनाया है फॉर आवर कन्वीनियंस। इसका मतलब ये नहीं है कि टेस्टिस अलग अलग रहता है, टेस्टिस एक ही पाउच में रहता है, जो बीच में सेप्टम होता है, जो हमने पहले पढ़ा था, दैट वाज ट्रू एंड दैट इज ऑलवेज ट्रू। बट यहाँ पे हम क्यों पढ़ते हैं, तो समझने के लिए हम यहाँ पे, क्योंकि टू अकोमोडेट ऑल द ऑर्गन्स properly and for proper study we draw in this way. I hope it is clear. Now let us start and continue. Now this is testis and I have already discussed कि testis जो होता है उसके बाद immediately हमारा क्या रहता है, epididymis। जैसे हमने अच्छा उसके पहले क्या है, देखो ये आपका क्या स्ट्रक्चर है, पाउच लाइक, that is scrotum, this is your testis, and immediately after the testis behind or the posterior part of the testis you can see the epididymis is present, which is highly coiled structure। अब मैं आपको हाईली कॉइल स्ट्रक्चर बोल रहा हूं, तो आपको एक बार मैं पुराना एक डायग्राम भी दिखा देता हूं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ देखिए, कैन यू सी दिस, देखिए आपको यहाँ पे जो एपिडिडाइमिस दिख रहा होगा, देखिए आप कितना कॉइल्ड स्ट्रक्चर है ना, बहुत ही कॉइल। ये हेड पार्ट है, ये बॉडी पार्ट है, इसका टेल पार्ट है। इसके बाद ये यहाँ पे भी जो आगे जा रहा है, यहाँ पे भी ये बहुत कॉइल रहता है, ठीक है। लेकिन हम डायग्राम में दिखाने के लिए इतना कॉइल नहीं बनाएंगे, इट्स अ स्कीमेटिक डायग्राम फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, ठीक है। लेकिन ये बहुत कॉइल होता है, ठीक है ना। अब यहां से देखिए आप हेड पार्ट, बॉडी पार्ट एंड फाइनली इट इज द टेल पार्ट, ठीक है। यहाँ पे जाके स्पर्म आपका जो यहाँ पे स्टोर रहता है फॉर 18 to 24 आवर्स, है ना। अब यहां से आप देखो, अब देखिए आप लोग कि यहां से क्या होगा, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विल कंटिन्यू एंड इट विल मेक अ लूप। पहला तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कहां तक जाएगा, इट विल गो जस्ट टॉप पार्ट अंटिल द टॉप पार्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लडर। बिल्कुल देखिए आप यूरिनरी ब्लडर के बराबर जो हाइट है, मतलब हाइट नहीं बोलना चाहिए, जो पोजीशन है वहां तक पहुंचेगा। उसके बाद क्या होगा, देयर विल बी शार्प लूप फॉर्मेशन। उसके बाद क्या करेगा, एक लूप बनाएगा, ठीक है। मतलब आपका ये जो स्ट्रक्चर एपिडिडाइमिस से जा रहा है, ठीक है, इसे हम कहते हैं वास डिफरेंस या वासा डिफरेंशिया, ठीक है। पहले जैसे हमने पढ़ा था वासा एफरेंशिया, यहाँ पे जो कि कनेक्ट कर रहा था आपका रेटिटेस्टिस के साथ एपिडिडाइमिस को, बिल्कुल वहां उसी तरह से एपिडिडाइमिस जो कैरी आगे बढ़ रहा है, मतलब आपका जो which is forming the tube like structure and which is connecting the finally the urethra, यहाँ पे urethra में कनेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं वास्ट डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, वास्ट डिफरेंस। सो ये क्या करेगा, आप ध्यान से देखिए, इट इज मेकिंग अ लूप जस्ट एट द अपर पार्ट और द टॉप पार्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लडर, राइट। और क्या होगा इसके बाद, आप देखिए कि इट इज हैविंग कनेक्शन, इट इज फॉर्मिंग अ कनेक्शन विद द यूरिथ्रा। तो हमने एक टेस्टिस का देखा है, बिल्कुल सेम हम बस एक टेस्टिस का यहाँ पर स्टडी करेंगे। जो भी हम इस साइड में देख रहे हैं ये बिल्कुल सब कुछ सेम हमारा अदर टेस्टिस, दूसरे टेस्टिस के लिए भी होगा। तो इसीलिए आप यहाँ देख सकते हो कि देयर इज वन मोर स्ट्रक्चर आई हैव ड्रॉन, दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस टेस्टिस। So I have not drawn the complete structure, but you need to understand that this is also the part of, this is also vast difference. So दो vast difference होता है, एक testis से एक निकलेगा, तो दो vast difference होंगे and they will get connected or they will get fused with the urethra, right, urethra at just below the urinary bladder, ठीक है। तो ये आपको और एक समझना है कि before it go and join with the urethra, it is actually forming a loop like structure। आपको जो ये loop like structure दिख रहा है, ये इस तरफ भी दिखेगा, यहाँ पे भी loop like structure बनता है, both the sides। Now, so the connection where it is getting connected, both these vast difference, it is actually helping, the vast difference is actually transporting or helping in conduction of the sperm, ठीक है। अब इस sperm को conduct करने में help करता है through the urethra। तो मेल केस में क्या होता है कि यूरिन भी सेम पाथ से जाता है और स्पर्म भी सेम पाथ से ट्रांसपोर्ट होता है। तो देयर इज अ कॉमन पाथ फॉर यूरिन एंड आल्सो फॉर द स्पर्म, ठीक है ना। अब जहां पे ये लूप फॉर्मेशन हुआ है, आप वहां पे आप ध्यान से देखिए, देयर इज अ स्मॉल, वेरी स्मॉल स्वेलिंग कैन बी सीन, राइट, स्वेल स्ट्रक्चर कैन बी सीन, एंड दैट स्ट्रक्चर यहाँ है, वो इस तरफ भी होगा, ठीक है। सो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एम्प्यूला, ठीक है। जस्ट इमीडिएटली the where the loop is actually forming, just beside the urinary bladder, there is a small bulb like structure, there is a swelling like structure is present, that is called ampulla. Now this ampulla is the structure where the other structure or the glands, जो हमने पढ़ा था कि there are some other accessory glands as well are also present,
So one of the respiratory gland, that is your seminal vesicle, is getting connected here in this ampulla region. तो seminal vesicle क्या करता है, यहाँ पे ampulla region में connect हो जाता है, ठीक है. Then the seminal vesicle secretion, then the sperm, both are released in this area, both are actually transported through this vast difference, and finally it will reach and it will be coming to the common path, that is your urethra, ठीक है. So एक बार हम फिर से, अच्छा ठीक है, let us continue and understand the diagram in detail. Again we'll discuss later on. Now इसके बाद आप देखिए, the next thing, the next important thing what you need to understand, कि यहाँ पे ये तो seminal vesicle है. Then we can see there is one more gland like structure. This structure is chestnut or donut shape. अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ग्लैंड है, ठीक है, ये आपको तभी दिखेगा, मतलब नॉर्मली हमने अभी जो स्टडी किया, ये यूरिथ्रा, ये बाकी जो आपके वास्ट डिफरेंस, दिस विल ओनली वी कैन सी व्हेन वी रिमूव दिस ग्लैंड. तो ये जो ग्लैंड है ऊपर आपको दिख रहा है, विच इज अ डोनट शेप ग्लैंड, और व्हाट वी कैन से चेस्टनट, डोनट और चेस्टनट शेप ऐसा होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पोस्ट्रेट ग्लैंड. क्या नाम है उस ग्लैंड का? पोस्ट्रेट ग्लैंड, ठीक है. हर ग्लैंड का क्या फंक्शन है हम आगे डिस्कस करेंगे, कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ग्लैंड जो एक्सेसरी ऑर्गन है उसका क्या फंक्शन है, प्रोस्टेट का क्या फंक्शन है, ठीक है. फिर कॉर्पस ग्लैंड हम आगे ग्लैंड्स हम आगे पढ़ेंगे, उसका भी क्या फंक्शन है हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, ठीक है. सो ये यूरिनरी ब्लैडर है, और जस्ट आफ्टर द यूरिनरी ब्लैडर where the junction of where vast difference with the urethra, in that area, just above that, and that area, but we can see there is one more gland which is donut shape or chestnut shape, that is called postrate gland, ठीक है. अब देखिए इसके बाद जो आपका यूरिथ्रा है, it will continue and this is a common path for urine and the sperm as well, दोनों के लिए common path होता है. अब उसके बाद the next thing what you need to understand, see this urethra is going through a structure, it is actually going through the structure, and the structure which is highly vascular, which is made up of highly vascular tissue, ठीक है. ये आपका जो पार्ट है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दैट इज कॉल्ड पेनिस, ठीक है. और बिल्कुल इसी के अंदर से आपका यूरिथ्रा, आपका यूरिथ्रा इज एक्चुअली पासेस थ्रू दिस स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड पेनिस, व्हिच इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया. अब पेनिस की जो टिप पार्ट है, द टिप पार्ट वी कैन सी देयर इज अ little bit bulge, we can see a little bit bulge, and that part is called glans penis, ठीक है. क्या बोलते हैं हम उसे? glans penis, ठीक है. और there is a small thin skin covering is also there, which cover this glans penis, that is called foreskin. And this part, this glans penis, is very very sensitive in nature, and this gland penis or the entire structure, entire penis is actually made up of highly vascular टिश्यू, ठीक है. अब ये जो यूरिथ्रा है, बेसिकली इट इज यूरिथ्रा because it is transporting sperm and urine both, so that's why we call it as, and we have given another name, that is called urinogenital duct. क्या कहते हैं हम इसको? urinogenital duct. दोनों ही काम करता है, स्पर्म को भी मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पाथ में रिलीज करने के लिए हेल्प करता है, और यूरिन रिलीज करने में भी इसका काम है, ठीक है. अब at the end what we can see, at the tip of the penis we can see there is an opening, and that is called urinogenital opening. और वो opening जो होता है, it is a slit like structure. अब slit बोले तो कैसा, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो देख लीजिएगा एक बार. slit बोले तो ऐसा, the opening will be like this. It is not circular नहीं होता है, it is a slit like structure. I hope it is clear. So that we can see in case of the urinogenital pore, ठीक है. Now the last gland what we need to discuss, that is your corpus gland. Just after the at the base of the penis we can find there is a paired structure which is small. These glands are smaller and small glands. These are paired structure. These are called corpus gland. क्या कहते हैं हम इसे? corpus gland, okay. So you can pause and you can draw the diagram. So we'll discuss the points in detail now. Now in the pelvic region, what I have discussed, the same thing
are there on the screen also, so you can take your points. So let us have a quick revision and try to understand. See, in the pelvic region, the urinary bladder is present. That is true. The urinary bladder is present in the pelvic region. Now the vast difference goes up to the top of the bladder. बताया था मैंने आपको. The vast difference is going up to the top of the bladder, then takes a turn and makes a loop-like structure, then come close to the lower part of the bladder. वही बताया है ना? The same thing we have discussed just now. तो यहाँ से ये जाता है आपका जो vast difference from the epididymis then till the top part of the urinary bladder, then it is taking turn, making a loop, and it is going until which part? That is a lower part of the bladder. Top part से शुरू हुआ urinary bladder का कहाँ तक गया? Lower part तक, है ना? So lower part of the bladder, right? Now the vast difference open into the urethra, and there are two vast differences which open here. हमने दिखाया आपको डायग्राम में कि एक टेस्टिस से एक वास्ट डिफरेंस आ रहा है, दूसरे टेस्टिस से दूसरा वास्ट डिफरेंस आ रहा है. बोथ आर actually connecting with the urethra and both are pouring their secretion directly inside the urethra in that junction, right? Now the urethra brings the urine which is stored in the bladder. तो urethra क्या करता है? जो यूरिन जो सीक्रेट होता है ब्लडर में उसको वो रिलीज करता है, ठीक है. सो यूरिथ्रा इज अ कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड गैमेट्स, ठीक है ना. द सेम थिंग आई हैव डिस्कस. यूरिथ्रा क्या है? इट्स अ कॉमन पैसेज फॉर गैमेट्स एंड यूरिन. दैट इज व्हाई हमने क्या नाम दिया इसको? यूरिनोजेनाइटल डक्ट. नाउ बिफोर द वास्ट डिफरेंस जॉइन द यूरिथ्रा देयर इज अ स्मॉल स्वेल पार्ट, ओके, व्हिच कैन बी सीन. दैट इज कॉल्ड एम्प्यूला. हमने डिस्कस किया था, दिखाया था, फिर देख लेते हैं कि अंदर वापस यूरिथ्रा में यूरिथ्रा के साथ ज्वाइन करने से पहले एक स्वेल छोटा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, ठीक है. उसे हम कहते हैं एम्प्यूला. क्या कहते हैं हम उसे? एम्प्यूला. दिस इज द एम्प्यूला. नाउ दिस एम्प्यूला ओपन्स इन अ ट्यूबुलर ग्लैंड नोन एज सेमिनल वेसिकल, ठीक है. हमने देखा था एम्प्यूला कहाँ पे कनेक्टेड होता है. एम्प्यूला में आप देखोगे तो ये सेमिनल वेसिकल के साथ कनेक्ट होता है. इट इज ओपनिंग इनसाइड दी into the seminal vesicle as well. Okay. Now this part of ampulla or the part of the ampulla actually till the urethra where the vas deferens join, that part is called ejaculatory duct. इसको थोड़ा बहुत देख लेंगे. This is important. किसको बोल रहे ejaculatory ducts? देखते हैं. क्या कह रहा है कि आपका ये जहाँ पे ampulla बना है, जहाँ पे ampulla है, इस रीजन से यहाँ तक, कहां तक? जहां पे यूरिथ्रा के साथ वास्ट डिफरेंस कनेक्ट हो रहा है. वैसे तो जहां टेल पार्ट से एपिडिडाइमिस के टेल पार्ट से लेके ये पूरा जो स्ट्रक्चर जो कि जहां तक मतलब यूरिथ्रा के साथ ज्वाइन हुआ, ये पूरा ही वास्ट डिफरेंस है. लेकिन हमने क्या किया है कि एम्पुला पार्ट से लेके जहां पे कनेक्ट हुआ है, जहां पे वास्ट डिफरेंस कनेक्ट हुआ है यूरिथ्रा के साथ, बस इतने पार्ट को, बस ओनली दिस पार्ट, दिस मच एरिया, हमने क्या कर दिया? उसको नाम दे दिया. उसका नाम क्या है? इजैकुलेटरी डक्ट. क्या बोलते हैं हम उसे? इजैकुलेटरी डक्ट. समझ में आ गया? चलिए, सॉरी. नेक्स्ट, द कनेक्शन बिटवीन द वास्ट डिफरेंस एंड द यूरिथ्रा इज नॉट विजिबल. मैंने बताया था आपको कि यूरिथ्रा अगर हम ये यहाँ पे देखेंगे, अगर हम ये ग्लैंड को अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो हम यहाँ पे इफ यू ड्रॉ दिस ग्लैंड, द प्रोस्टेट ग्लैंड एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट, तो हमें ये जंक्शन नहीं दिखेगा ठीक से, ये कनेक्शन नहीं दिखेगा, ठीक है. सो द कनेक्शन बिटवीन द वास्ट डिफरेंस एंड द यूरिथ्रा इज नॉट विजिबल अंटिल वी रिमूव द ग्लैंड व्हिच इज प्रेजेंट जस्ट अबव इट. क्या ग्लैंड है वो? प्रोस्टेट ग्लैंड है, हमने डिस्कस किया है ना. नाउ द यूरिनोजेनाइटल डक्ट पास थ्रू अ हाईली मस्कुलर एंड वस्कुलर स्ट्रक्चर एंड टुवर्ड्स द एंड इट शोज स्लाइटली बल्ज. हमने देखा था ना कि जो मस्कुलर, एक तो ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है और दूसरा क्या है कि एंड में टिप के साइड में थोड़ा बल्जनेस है ना, थोड़ा बल्जिंग है, ठीक है. सो द यूरोजेनाइटल डक्ट एंड एट द एंड एंड व्हाट आई हैव सेड ऑलरेडी कि ये मस्कुलर भी होता है. मस्कुलर मतलब क्या होता है? इट इज रिच सप्लाई ऑफ ब्लड विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स. सो ब्लड वेसल्स बहुत रहते हैं, इसे बोलते हैं मस्कुलर स्ट्रक्चर है. और टुवर्ड्स द एंड इट शोज स्लाइटली बल्ज, स्वेलिंग, राइट, एंड देन इट ओपन्स. थोड़ा बल्ज होता है टिप की तरफ या जो एंड पार्ट है,
एंड उसके बाद ये ओपन होता है। ओपन कैसे होता है मैंने दिखाया आपको, ये स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें सर्कुलर ओपनिंग नहीं होता है, राइट। दिस स्ट्रक्चर इज द कॉप्युलेटरी ऑर्गन। इसका काम क्या है, इट इज हेल्प इन कॉप्युलेशन, इसे कहते हैं कि हम, और इसको दूसरी तरह से हम क्या कह सकते हैं, एक्सटर्नल जेनिटलिया इन केस ऑफ मेल, दैट इज कॉल्ड पेनिस। तो पेनिस क्या है, पेनिस इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर which is highly vascular in nature, and it is an external genitalia which help in copulation or transfer of the male gamete inside the female body, that is inside the female reproductive tract, right? Now the slightly swollen tip known as glans penis, पहले मैंने बताया कि वो थोड़ा सा जो बल या हल्का सा जो आपका swollen structure होता है टिप पार्ट में पेनिस का, उसे हम कहते हैं glans penis, ठीक है, glans penis. And the tip has a loose skin fold which is known as foreskin or prepuce, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, जो bulbs little bit swollen structure है, it is covered with a thin skin fold, एक skin रहता है उसके ऊपर, skin से covered होता है, वो skin structure होता है which is covering the glans penis, and that is called the prepuce or foreskin. और मैंने क्या बताया था आपको, this part is highly sensitive, it is very very sensitive in nature, right? Because lots of blood vessels and nerves are present in that area. Now, the opening of the penis or the urogenital apparatus, okay, it is also called the urogenital apparatus or urogenital opening. Okay, it is a slit-like opening. It is not a circular structure. The same thing I have discussed, right? One more gland is present at the base of the penis. हमने डिस्कस किया था कि पेनिस, बेस ऑफ द पेनिस में एक और एक ग्लैंड होता है, ठीक है ना, दिस इज द पेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, उसे बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं उसे, काउपर्स ग्लैंड। So one more gland is present at the base of the penis and there are small paired gland known as Cowper's gland. क्या करता है ये, mucus secrete करता है which is providing lubrication during the time of copulation. So it is helping or it is providing lubrication during the time of copulation, right, during the time of mating it is actually help. तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, I hope it is clear. So let us go back to the diagram and let's have a small revision, then we can move on. So ये testis है, then testis is just after the testis we have the structure that is called epididymis, which is connected with the seminiferous retatestis, which is connected with the vas efferentia. Then it is coming out from the tail part, और tail part is very important. why बताया था मैंने आपको, यहाँ पे जो sperm है वो store होता है for 18 to 24 hours and where they are getting mature or they get maturation होता है, वो उनका physiologically वो mature हो जाते हैं tail part में रहने के बाद. Then they will be transported further with this tube-like structure which is called vas deferens, and that vas deferens will take a loop-like or a turn just at the top part of the urinary bladder which is present in the pelvic region and will form a loop-like structure at the loop, and where the loop actually ends. Here a small swelling structure can be seen, or a swollen structure can be seen, that is called ampulla. And that ampulla, after the ampulla it is going and connecting with the urethra which is present just after the urinary bladder. Function क्या है urethra का, to transport or to release the urine through the urethra, ठीक है। तो ये जो वास्ट डिफरेंस से जो कनेक्ट हुआ है और एम्पुला से लेके यहाँ तक आपके यूरिथ्रा के तक कनेक्टिंग पॉइंट तक इस पार्ट का जो ये पार्ट है वास्ट डिफरेंस, को हम कहते हैं ejaculatory duct, ठीक है। एंड एम्पुला इज आल्सो कनेक्टेड विद ग्लैंड दैट इज कॉल्ड सेमिनल ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। नाउ द यूरिथ्रा इज कंटिन्यूड एंड इट इज गोइंग थ्रू और इज पासिंग थ्रू द external genitalial structure which is a muscular and highly vascular structure known as penis in case of male, which help in the copulation or transfer of the male gamete inside the female body, that is inside the female reproductive part, ठीक है। और इसको because it is having dual role, that is one is passing the urine and another one is to pass the sperm, that's what we call, and we have given a name that is called urinogenital duct. और ये एक्सटर्नल आपका जो स्ट्रक्चर है थ्रू विच द urinogenital duct is passing, that structure which is muscular and vascular is known as penis,
And at the tip, we can see there is a bulge or a little bit of swelling tip at the tip part that is called glans penis, which is having a covering of a small or a skin folding that is called foreskin or profuse. And then at the top, at the tip, we can see there is opening. There is your urinogenital opening, which is having a slit-like structure, not a circular structure. Right now, there is a donut and chestnut shaped structure present just above the junction of the vas deferens and the urogenital duct. And that gland, it is a donut and donut shape or chestnut shape, that is called prostate gland. क्या कहते हैं उसे? Prostate gland कहते हैं. And just at the base of the penis, you can see there are paired structure. There is a paired structure, paired gland structure that is called Cowper's gland. क्या कहते हैं हम उसे? Cowper's gland. क्या करता है ये? ये mucus secrete करता है and providing lubrication during the copulation. Right? So I hope it is clear. So in the next class, we are going to discuss about the accessory glands. अभी जो gland के बारे में हमने बात किया था, अभी उसका function हम देखेंगे. और क्या देखेंगे हम? पेनिस का एक टी सेक्शन लेके देखेंगे उसमें क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स है. एंड आई थिंक बाय दैट वी विल फिनिश दिस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. सो अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? फेमिनिन वेसल के बारे में पढ़ेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, इसका लोकेशन, उसका स्ट्रक्चर, उसका साइज, उसका फंक्शन. ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड, कोपस ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल, ये सब हम पढ़ेंगे. और टीएस सेक्शन भी लेंगे वेनिस का और देखेंगे उसमें क्या क्या पार्ट है. ठीक है, so till then take care and be safe, stay at home. We'll meet in the next video lecture.